قومی اسمبلی کا اجلاس، خاقان نے نکالی بھڑاس، اسپیکر کی لی کلاس، پروڈکشن آرڈر کے لیے کردار ادا نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسد کیسے سے جواب نہ بن پایا تو اسد عمر کو مائک دلایا۔ شاہد خاقان نے کہا وہ اسپیکر کی پروڈکشن آرڈر پر نہیں، عدالتی حکم پر آئے ہیں۔ سابق وزیراعظم کا رانا ثنا سمیت تمام اسیر ارکان کی پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونے کے خلاف واک آؤٹ۔ طلبہ یونینز کی بحالی کی راہ مزید ہموار، سندھ کے بعد وفاق بھی پابندی کے خاتمے پر تیار۔ نون لیگ نے قومی اسمبلی میں بل پیش کر دیا۔ خواجہ آصف نے کہا طلبہ یونین سیاست کی نرسری ہوتی ہے۔ سعد رفیق بولے تمام جماعتوں میں اسٹوڈنٹس یونینز کے نمائندے موجود ہیں۔ پرویز اشرف بولے عمران خان یونینز کی بحالی کے متعلق ٹویٹ کر چکے۔ شیریں مزاری اور اسد عمر نے کہا یونینز بحال ہونی چاہیے۔ مراد سعید نے کہا تمام جماعتیں مشترکہ بل لائیں۔ آئین کے آرٹیکل 27 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ وفاقی ملازمتوں میں صوبوں کے کوٹے کی میعاد میں 10 سال اضافے کی تجویز، حکومت نے مخالفت نہ کی، بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد۔ احتساب آرڈیننس میں ترمیم کا بل پیش کرنے پر حکومت کی جانب سے عبدالاکبر چترالی کی مخالفت۔ ملکہ بخاری نے کہا حکومت خود نیب قوانین تبدیل کرنے جا رہی ہے، نجی ممبر بل نہ پیش کریں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں انتہائی اہم موضوعات پر غور۔ کانفرنس تقریباً 7 گھنٹے جاری رہی۔ اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ کور کمانڈرز نے ملک کی داخلی اور خارجی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کل دوپہر 3 بجے پریس کانفرنس میں کمانڈرز کانفرنس کی بات چیت سے آگاہ کریں گے۔ مجرم باہر بیٹھ کر قوم کا مذاق اڑاتے ہیں، وزیر قانون کو اس کے متعلق لاہ عمل بنانے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ فردوس عاشق کا کہنا ہے قانون کے مفرور لندن میں بیٹھ کر پاکستان کی قانون سازی کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہیں۔ مریم نواز کا نام ECL پر ہے، کسی کی عیادت کے لیے باہر جانے کی درخواست دینا بھی ایک مثال ہے۔ سب کمیٹی کو اس پر لاہ عمل بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسلاموفوبیا اور بریگزٹ کی غیر یقینی صورتحال کے باوجود 12 دسمبر کے انتخابات میں برطانوی مسلمان ووٹرز کا کردار اہم۔ 18 حلقوں میں مسلمان ووٹرز کی فیصلہ کن پوزیشن، مسلم کونسل آف برطانیہ کی رپورٹ جاری۔ برطانیہ میں عام انتخابات میں 2 دن باقی۔ راش ڈیل میں کنزرویٹو پارٹی کی امیدوار عاطفہ شاہ نے تقریب سے جالی، کامیابی پر کمیونٹی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ سعیدہ وارسی بھی شریک ہوئیں۔ لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے آفس میں شاہین پیلٹیو کیئر پروجیکٹ کی تقریب، پاکستان ہائی کمشنر کی بھی شرکت۔ فلاحی ادارہ بوڑھے مریضوں کو مفت علاج کی سہولت مہیا کرے گا، نفیس زکریا کی گفتگو۔ اڈنبرا میں چودھری نثار احمد کے ممبر اوورسیز پاکستانی کمیشن بننے پر عشائیے کا اہتمام۔ تقریب PTI ایسٹ آف اسکاٹ کی جانب سے منعقد کی گئی، پارٹی عہدیداران اور کارکنوں کی بھرپور شرکت۔ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے برطانیہ میں اوپن کچن کے قیام کو 1 سال مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد۔ پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ بے گھر افراد اور نادار افراد کی بھی شرکت، شرکاء نے تعلیم کی خدمات کو سراہا۔ یورپین اسلامک سینٹر اولڈ ہم میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے تقریب، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد شریک ہوئی، محفل سما پر لوگ جھوم اٹھے۔ ماں جائی نو ٹوکو جا کے، وین اودے نو روکو جا کے، اودی ہاچ گرمی کوئی نہیں، ساڈے دل وچ نرمی کوئی نہیں، اودے پھٹ وکھاندے کیوں جے، ساڈا ٹھٹھا لاندے کیوں جے، رضا دے بالاں کولوں پچھو، اپنے غم سناندے کیوں جے۔ بزم ادب برسٹل کی جانب سے کمیونٹی شاپ ایسٹر میں ادبی تقریب کا انعقاد، مقامی شعراء نے کلام پیش کر حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच की तैयारियां मुकम्मल। सीरीज की ट्रॉफी की रूनमाई भी कर दी गई। दोनों टीमों की भरपूर तैयारी। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को टिप्स दी। पाकिस्तानी टीम के तमाम अरकान पहली बार होम ग्राउंड पर टेस्ट खेल रहे हैं। अब आपको बताएं कि विफाकी काबीना की अक्सरियत ने मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की मुखालिफत कर दी। फैसल वावडा ने कहा कि किसी सूरत मरियम नवाज का नाम ECL से नहीं निकलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी फैसल वावडा की हाँ में हाँ मिला दी। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी इस रिपोर्ट। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने का जिक्र विफाकी काबीना के इजलास में छिड़ गया। ज़राए के मुताबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा समेत कई वज़रा ने मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी की मुखालफत कर दी। फैसल वावडा ने कहा कि विफाकी हुकूमत किसी सूरत मरियम नवाज का नाम ECL से न निकाले। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी फैसल वावडा की तजवीज़ की हिमायत कर दी। इजाजत मिल भी जाती है हम उसको चैलेंज करेंगे, अपील में जाएंगे। इजाजत कौन देगा? आपने पहले रिव्यू कमेटी ने देना। नहीं, हम हमारी तरफ से तो कोई इजाजत नहीं है, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। मेरी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट से बड़ी डिटेल बड़ी खुल के इसके ऊपर बात हुई है। एंड दे ऑल मूड नहीं है, नंबर्स नहीं है जी। मतलब हुकूमत की जो वफाकी हुकूमत की जो रिव्यू कमेटी है उससे कोई चांस नहीं है कि यहाँ से नॉट इवन 0.001%। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज के लंदन जाने की अपील पर कुछ यूं तबसरा किया। ऐसा सजा याफ्ता कैदी ECL पे डाला गया हो, किसी और बीमार की आदत के लिए एप्लीकेशन दे। अपनी सेहत के हवाले से तो कोई ना कोई मिसालें मिलती हैं, लेकिन ऐसी मिसाल भी तारीख में अनोखी, जहाँ इतने और ज्यादा अनोखे कारनामे इस अपोजिशन के नामवर कायदीन के ने झंडे गाड़े। उसमें एक ये भी झंडा उनके हिस्से में आ रहा है कि भी मेरे चूंकि वालिद साहब बीमार हैं और वालिद साहब के 2 बेटे और अनगिनत बहुएं, फिर उनके पोते पोतियां, फिर भाई, फिर भतीजे, फिर नवासे, फिर नवासियां और एक बेटी भी और समधी वहाँ मौजूद होते हुए भी वो अगर एक ही रिश्ते पे इन्हिसार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाकी सारे रिश्तों पे अदम एतमाद है, उन पे उन्हें यकीन नहीं है। जब तक कैबिनेट के अंदर कोई कंक्रीट चीज नहीं लाई जाती, हुकूमत उस पे कोई ऐसा रिएक्शन दे नहीं सकती। वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद भी कह चुके हैं कि हुकूमत मरियम नवाज का नाम ECL से नहीं निकालेगी। हाल में हुकूमत नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, नहीं करेगी। अभी तक जो थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई है उसके में अभी बिल्कुल क्लियर, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत इसको उनको बाहर जाने की इजाजत मुकदमात की वजह से नहीं देगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने से मुताल्लिक हुकूमत को 7 दिन में फैसला करने का हुक्म दे चुका है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया और ब्रेक्जिट की गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद 12 दिसंबर के आम इंतखाबात में मुसलमान वोटर्स अहम किरदार अदा करेंगे। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। बारह दिसंबर बरतानिया में इंतखाबी दंगल का दिन। मुल्क में 5% अक़लियत होने के बावजूद मुस्लिम वोटर्स कलीदी किरदार निभाते हैं। मुस्लिम काउंसिल ऑफ बरतानिया की जारी करदा लिस्ट के मुताबिक कम से कम 18% इंतखाबी हलकों में मुसलमान वोटर्स फैसला कुन किरदार अदा करने की पोजीशन में है। इन अहम हलकों में कनिंस्टन, शमाली डेडले और रिचमंड पार्क सर फहरिस्त हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 13 इंतखाबी हलकों में जहाँ मुसलमान वोटर्स दरमियाना असर रसूख रखते हैं, वहाँ लेबर पार्टी की सीटों में इजाफा हुआ। मुस्लिम काउंसिल ऑफ बरतानिया एक मुल्क गिर तंजीम है जिसके बरतानिया भर में 500 से ज्यादा तालीमी और खैराती इदारे और मसाजिद के असर रसूख को नुमाया करते हैं। ताहम ये तंजीम गैर सियासी है। बरतानिया में आम इंतखाबात के सिलसिले में रॉचडेल से कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार आतिफा शाह की तरफ से एक तकरीब मुनाकिद की गई जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तफसीलात राजा वाजिद की इस रिपोर्ट। बरतानिया में 12 दिसंबर को होने वाले आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी है। रॉचडेल से कंजर्वेटिव पार्टी की उम्मीदवार आतिफा शाह की तरफ से एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी की साबिक चेयरपर्सन सईदा वारसी ने खसूसी तौर पर शिरकत की और तकरीब में मौजूद लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। आतिफा शाह ने रॉचडेल के लोगों को यकीन दिलाया कि अगर वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गई तो रॉचडेल के तमाम मसाइल हल करेंगी।
मुझे बहुत अफसोस की बात है, आज मैं ये बात भी कहूँगी कि जब मैं खड़ी हुई हूँ हर एक पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर ने मुझे बात करने तक नहीं दी। यहाँ KYP की मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मीटिंग यहाँ रखने दी। 2019 में ये एक हमारे अपने कम्युनिटी सेंटर्स अपनी लड़की को प्लेटफॉर्म नहीं देना चाह रहे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए साबिक चेयरपर्सन कंजर्वेटिव पार्टी सईदा वारसी ने कहा, इस इलेक्शन में बड़ी तादाद में मुसलमानों को सेव और टारगेटेड सीटों पर टिकट दिए गए हैं। मैं कहती हूँ कि जो मुसलमान ओरिजिन के जो बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं वो हर सीट में बहुत सेफ सीट में और टारगेट सीट्स में भी उनको टिकट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैरिडन एक सीट है बर्मिंघम में जिसकी ह्यूज मेजॉरिटी है, वो कितने सदियों से कंजर्वेटिव की सीट है। कैरोलाइन स्पेलमन मिनिस्टर भी रही हैं, उनकी सीट थी और इस बार साकिब भट्टी एक लड़का है वो वहाँ पे खड़ा हो रहा है और यकीन है कि वो इस बार MP बन जाएगा। मुझे बहुत खुशी हुई है कि बारनेस सईदा वारसी यहाँ, जिन्हें मैंने बड़ी बहन की तरह समझा है और हमेशा इनसे इनके कदमों में चलने की मतलब हिम्मत रखी है कि ये आज यहाँ आई हैं मेरे साथ, यहाँ मेरा साथ देने, और इंशाल्लाह अल्लाह में इनको सलामत रखे और हमारे सर पे इंशाल्लाह। तकरीब में मौजूद लोगों का कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि आतिफा शाह कामयाब होकर लोगों के हकूक़ के लिए लड़ेंगी। सईदा वारसी लाई और उनको देखा, उनकी बात सुनी, एक उम्मीद लगी कि जिस भी माशरे में आप रहते हों, जो आपको प्रेजेंट कर रहा है उसके दिल में ये होना चाहिए कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए कितना सिंसियर है। तो मेरी उम्मीद है आतिफा से इंशाअल्लाह ताला वो आएगी, ये बच्ची लड़ेगी अपने नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अल्लाह इसे कामयाब करे। बरतानवी इलेक्शन में कामयाबी का सेहरा किस पार्टी के सर पर सजता है, इसके लिए आम इंतखाबात के नताइज का इंतजार करना होगा। साथी रिपोर्टर एतजाज आसिम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में शाहीन पैलिएटिव केयर प्रोजेक्ट की तकरीब रूनमाई का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया थे। ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अमान की रिपोर्ट। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑफिस में शाहीन पैलिएटिव केयर प्रोजेक्ट की तकरीब रोनुमाई में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने खसूसी तौर पर शिरकत की। नफीस ज़करिया का कहना था कि शाहीन पैलिएटिव पाकिस्तान में बूढ़े मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत मुहैया करेगी। शाहीन पैलिएटिव केयर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक ऐसी फील्ड में काम करें जिसके बारे में ख़ुद पाकिस्तान में इतनी आगाही नहीं है और ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सपोर्ट के लिए। तो ये मेरे पास आए थे कुछ अर्से पहले और उन्होंने बताया अपने काम के हवाले से, तो मैंने ये महसूस किया कि एक बहुत ही मुक़द्दस, बहुत नोबल कॉज है जिसके अंदर हमें हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने जो पहला स्टेप लिया वो यही है कि इनको प्लेटफॉर्म दिया ताकि ये अपने काम के हवाले से लोगों को आगाही दे सके। जैसे कि आपने देखा, फलाही तंजीम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का कहना था कि उनका इदारा पाकिस्तान में ऐसे मरीजों को तिब्बी सहूलियात मुहैया करेगा जिनका इलाज मकामी अस्पतालों में मुमकिन नहीं है। हमारे पास एक स्पेशलिटी की ट्रेनिंग है, कॉल्ड पैलिएटिव केयर ट्रेनिंग, विच इज़ अबाउट उन मरीज़ों का ख्याल रखना जिनको डॉक्टर्स कह देते हैं कि आप लाइलाज हैं। हम उन मरीजों का ख्याल रखते हैं। आई एम ए कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी इन हल यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल सिंस 2006. Oncology and palliative care go hand to hand. A palliative care project we have started for Pakistan with the name of Shaheen Palliative Care. The aim of our project is to develop services in Pakistan. Trustee of Palliative Care Project today at the launch of Shaheen Palliative Care at the High Commissioner of Pakistan, and we are very thankful to Your Excellency that we could provide this launch here today. तकरीब में शाहीन पैलिएटिव के सदर डॉक्टर सदफ मुदस्सिर, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर डॉक्टर सोबिया बिलाल, डॉक्टर कमर अब्बास और डॉक्टर अयाज भट्ट समेत दीगर ने शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। एडिनबरा में चौधरी निसार अहमद के मेंबर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन बनने पर PTI ईस्ट ऑफ स्कॉट की जानिब से इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब में तहरीक इंसाफ ईस्ट ऑफ स्कॉट के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। खालिद परवेज की रिपोर्ट।
ایڈنبرا میں چودھری نثار احمد کے اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کا ممبر مقرر ہونے کی خوشی میں چودھری زاہد اقبال سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی ایسٹ اسکاٹ لینڈ کی طرف سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ تحریک انصاف ایسٹ آف اسکاٹ لینڈ کے صدر فخر اقبال چودھری تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ چودھری نثار احمد کا ممبر او پی سی بننا اسکاٹ لینڈ کے لیے باعث فخر ہے۔ امید ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ مسائل حل کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ چودھری فخر اقبال صاحب صدر ایسٹ آف اسکاٹ لینڈ ڈنڈی سے تشریف لائے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، اور باقی سب دوست جو ادھر ایڈنبرا سے پی ٹی آئی ایڈنبرا کے دوست اور جو لیڈیز گلاسگو سے تشریف لائی ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سب نے مل کے مجھے یہ عزت بخشی۔ چودھری نثار احمد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس او پی سی کا ممبر بننے پر، اور ان سے بھرپور توقعات کی امید کرتا ہوں کہ یہ پاکستانی لوگوں کے اوورسیز لوگوں کے مسائل حل کرنے میں بھرپور کوششیں کریں گے۔ آج ہم ادھر ایڈنبرا میں اکٹھے ہوئے ہیں چودھری زاہد اقبال صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ایسٹ آف اسکاٹ لینڈ کی دعوت پر۔ انہوں نے چودھری نثار احمد کو ای او پی کا ممبر بننے پر یہ جو آج عشائیہ دیا۔ چودھری نثار احمد جو او سی پی اسکاٹ لینڈ سے ممبر بنے ہیں، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اپنے دل کے تھا گہرائیوں سے چودھری نثار احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان منصب پہ انہیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ تحریک انصاف ایسٹ اسکاٹ کے دیگر رہنماؤں نے بھی چودھری نثار کو مبارکباد پیش کی اور نئی ذمہ داری ملنے پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تحریک انصاف ایسٹ آف اسکاٹ لینڈ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ چودھری زاہد اقبال نے چودھری نثار کے او پی یو کے ممبر بننے کی خوشی میں ایک عشائیہ دیا، جس میں اسکاٹ لینڈ بھر سے ایک کارکنان نے شرکت کی۔ خالد پریز، 92 نیوز، ایڈنبرا، اسکاٹ لینڈ۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز یو کے۔ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کی جانب سے برطانیہ میں اوپن کچن کے قیام کو 1 سال مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی سمیت بے گھر اور نادار افراد نے بھی شرکت کی۔ وسیم قاسمی کی رپورٹ۔ لندن کے علاقے ہارنسلو میں مسلم ہینڈز انٹرنیشنل نے انسانی خدمت کے جذبے سے بھرپور بے گھر اور نادار لوگوں کے لیے اوپن کچن کا اہتمام کیا۔ تقریب میں ڈپٹی سی ای او مسلم ہینڈز انٹرنیشنل شاہد بشیر، سابق ڈپٹی میئر ہارنسلو مکیش ملہوترا، سیاسی و سماجی رہنما محمد ندیم سمیت رضاکاروں اور کمیونٹی کے دیگر افراد نے اس ایونٹ میں بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں شرکا نے تنظیم کے فلاحی کاموں کے تسلسل کو سراہتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں بھی فلاحی کاموں کی اشد ضرورت ہے، اور ایسے فلاحی ادارے بہت کم ہیں جو مقامی سطح پر اپنی مدد آپ کے تحت بلا تفریق کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ برطانیہ جیسے ملک میں رہ کر فرض ہے کہ یہاں کے مستحق افراد کی مدد کریں۔ اوپن کچن منصوبہ کمیونٹی کے باہمی اشتراک سے کامیابی کے ساتھ جاری ہے، جس میں 1 سال میں 31,000 سے زائد افراد کو دن میں 2 وقت کا کھانا پیش کیا گیا۔ It's really great to be here. It's 1 year now. We've had our anniversary of the Open Kitchen opening, and it's made such a huge difference. Every day you can come here at lunchtime or in the evening and you will see this place packed. And our mission is to support the community to make all the problem in the community to be solved. So I do bring food for all over the shop, Tesco and Asda to support the open kitchen. There's a lot of needs in our communities. A lot of us do not know them, do not see them. Bringing people together, those that can help and those that need the help. This is our prerogative here. That's what Muslim Hands does. Ya ayyuhan nas, O people, afshu salama bainakum. Spread peace amongst yourselves wa at'imu ta'am, and give food to the needy. So for us, we're a faith-based organisation, proud Muslims in Britain, and we're giving back to our brothers and sisters here, be they of our faith or not our faith. We believe this is what Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam would want us to do. It's really important that this is a community project. We always wanted for this project to be a community project, and now we have the support of the community to come here, support the project, support the open kitchen. یہ سید لخت حسنین صاحب کا ایک خواب تھا مسلم ہینڈ کا، اس نے اس کو تعبیر دی، اور اوپن کچن کے نام سے ہم نے یہاں پر ہنسلو میں یہاں پر 1 سال پہلے یہاں پہ یہ کام شروع کیا۔ آج 1 سال بعد ہم نے اس کو ورک آؤٹ کیا ہے۔ 31,688 لوگوں نے یہاں پہ کھانا کھایا ہے۔ ہارنسلو اوپن کچن کے 1 سال مکمل ہونے پر رضاکاروں کی خدمات اور ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔ اوپن کچن کی پہلی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، ہارنسلو، لندن۔
यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डहम में फलाही तंजीम की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से एक तकरीब सजाई गई, जिसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल समा पर लोग झूम उठे। इसी पर देखते हैं राजा वाजिद की ये रिपोर्ट। यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डहम में फलाही तंजीम की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर सनाउल्लाह ने कहा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शफा रखी है और कुरानी तालीमात पर अमल करके इससे फैज़ हासिल किया जा सकता है। हमारे लिए हज, नमाज, ज़कात और अल्लाह का जिक्र हमारे लिए बाइस रहमत, आका अलैहिस्सलाम की वजह से ये रहमत मिली। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, इसी तरह आका अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन, वो रहमत का फैज़ान इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से आप महसूस करेंगे इस दुआ के अंदर, इस कैफियत के अंदर। डॉक्टर लियाकत मलिक और रूहानी स्कॉलर हसन रजा ने कहा, रूह और जिस्म का आपस में गहरा ताल्लुक है, रूह के बगैर जिस्म बेमानी है। आज की महफिल जो मिलाद मुस्तफ़ा इज़ वन ऑफ द बेस्ट महफिल्स यहाँ हुई है और डॉक्टर सनाउल्लाह इज़ वन ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर्स यहाँ यूके के, and I want to wish him best। उनकी बुक भी आज लॉन्च हुई है। I've known डॉक्टर सनाउल्लाह for last 25 years। He is one of the best man, very humble man। रूह और जिस्म जो है वो अब लाज़िम व मंज़ूम है। अगर अरवा ना होती तो ये जिस्म जो है ये बेकार है। अगर जिस्म ना हो तो वो जो अरवाह हैं वो अपने रूहानी कमालात का इजहार नहीं कर सकती। मीडिया से बात करते हुए शुरका ने कहा, आज के दौर में इस तरह की रूहानी महफिल का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। इससे लोगों में दीन का शऊर बेदार होता है। कुरान करीम से किस तरीके से मामलात की सलूशन कैसे निकलता है, आपकी मुश्किलों का हल कैसे निकल सकता है, और वो परेशानियाँ और परेशानी के आलम में किस तरीके से कौन सी दुआएँ और कौन से कुरानी वज़ाइफ आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए ऐसे लोग मौजूद हैं जो लिख कर भी, अपनी तकरीरों में भी, अपनी बातों में भी लोगों रहनुमाई फरमाते हैं। मकसद सिर्फ इस्लामिक जो स्पिरिचुअलिज़म है और जो मिस्टिसिज्म है या सूफिया का जो पैगाम है, प्यार, मोहब्बत और अखुवत का, उसको रवाज देना है और यही यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद है। हमारा जो असल मकसद है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज पहुँचाना। तकरीब में कवाल नफीस और हमनवा ने कवाली पेश करके समा बांध दिया। तकरीब में रूहानी स्कॉलर डॉक्टर राना सनाउल्लाह की किताब परसेप्शन ऑफ स्पिरिचुअल वेव्स की रोनुमाई भी की गई। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ओल्डहम। बज़्म अदब ब्रिस्टल की जानिब से कम्युनिटी शॉप ईस्टर्न में महफिल बज़्म अदब का इनेकाद किया गया। महफिल में मकामी शोरा ने अपना कलाम पेश किया। हाज़रीन महफिल ने शोरा के कलाम को खूब सराहा। इसी पर देखिए तनवीर बुखारी की ये रिपोर्ट। बज़्म अदब ब्रिस्टल की जानब से सजाई गई महफिल बज़्म अदब में राजा सलीम अख्तर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। मुशायरे का आगाज़ अब्दुर्रहीम रूमी ने कुरान मजीद की तिलावत से किया, जबकि शाहिद महमूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत के फूल पेश किए। तड़प रहा हूँ यहाँ जाके मुस्तफा से कहो मदीने जाने वालों सदा मेरी भी सुनो। इस मौके पर जहां शोरा कराम ने अपने कलाम की मदद से माशरती बुराइयों की निशानदही की, वहीं कुछ ने अपनी शायरी से फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर इसराइली जहारियत के खिलाफ दुनिया के ज़मीर को भी खूब झंझोड़ा। मां जाई नू टोको जाके वैन ओदे नू रोको जाके ओदी हाच गर्मी कोई नहीं साडे दिल विच नरमी कोई नहीं ओदे फट विखांदे क्यों जे साडा ठट्ठा लांदे क्यों जे गजा दे बालां कोलों पुछो अपने गम सुनांदे क्यों जे। तैयब मुश्ताक की तरफ से कसीदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पेश किया गया। बस अब तो रहते हैं आँखों में अश्क आए हुए
जमाना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए, गमे हुसैन का गाओ है किस कदर गहरा, ये उनसे पूछ जो है दिल पे चोट खाए हुए। दीगर शोरा कराम के अशार और अंदाज़ बयान को भी खूब पजीराई हासिल हुई। मज़ाहिया और संजीदा अशार पर शुरा ने शोरा कराम को खूब दाद दी और तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। बिन उस्तादों दर्जी होयों तू सीनाए चजदा, फड़ मुर्शद ते मरना सिख लै जे तू जीना है चजदा। वाह वाह वाह, कीती अगे आ जाती है, कीती अगे आ जाती है, हर गल ही तकदीर नहीं होंदी। वाह वाह, कीती अगे आ जाती है, हर गल ही तकदीर नहीं होंदी, अपना आप मिटाना पैंदा है, अपना आप मिटाना पैंदा है, एवें ते तौकीर नहीं होंदी। क्या चाहतों की मंजिल ऐसी होती है, क्या चाहतों की मंजिल ऐसी होती है, ये सवाल ज़हन पर सवार किए बैठा। वाह वाह, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, ना कि चलना किसी खास बंदे के साथ में है। अपने पैरों पे चलना सीखो प्यारे, वाह वाह, मजा बिना बैसाखियों के चलने की ठाठ में है। इस मौके पर राजा सलीम अख्तर, तैयब मुश्ताक, मजहर इकबाल और महबूब चौधरी ने बज़्म अदब महफिल के इनेकाद पर दिली खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि जहाँ ऐसी महफिल से नौजवानों में अदब और सकाफत में दिलचस्पी बढ़ती है, वहीं इनमें अपने कल्चर की सूझबूझ भी पैदा होती है। शुरा महफिल का कहना था कि दियार गैर में अदबी महफिल का होना इस ताज़ा हवा के झोंके की मानिंद है जो मसरूफियात से भरी जिंदगी में नई रूह फूंक देता है। It is very, very important to have this kind of cultural meeting and to have a community cohesion. The other issue which wasn't touched on was that we need to bring the younger generation in for this so that they can understand the culture, the poetry and the religion issues. अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 2-3 माह पहले से शुरू किया है और बहुत ही कामयाब है। लोग बहुत खुश हैं, लोग आते हैं और इंजॉय करते हैं, उसमें अपनी शायरी, अपने गाने, अपने कोई म्यूज़िक, अपना कोई कुछ ना कुछ ज़रूर सुनाते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी जो है पॉपुलर है। Hi, yes, very pleased to attend today this culture program in Eastern Bristol, wonderfully organised by the organisers, and it's wonderful to see culture programs like this taking place, which shows our youth, our people here in this city, what culture is all about. इस तरह के सिलसिले अगर चलते रहें तो एटलीस्ट जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उन्हें भी कम से कम थोड़ी बहुत हमारे कल्चर से आगाही होती रहेगी। आखिर में कश्मीर, फ़लस्तीन और मुस्लिम उम्मा के लिए ख़ुसूसी दुआ कराई गई। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कश्मीर पीस फोरम फ्रांस के सदर जाहिद हाशमी कहते हैं भारत ने हत्ते कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रहा है, जबकि आलमी ताकतें इन मजालिम पर खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल कराया जाए। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, देखिए। 10 दिसंबर 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा ने जनरल असम्बली में एक मसवदा पेश किया और जिसे मुत्तफ़िका तौर पर पेरिस में ही मुत्तफ़िका तौर पर तमाम ममालिक ने उसे पास किया। इस कानून को पास हुए आज 71 साल बीत चुके हैं और अगर तहरीक आज़ादी कश्मीर की तारीख़ देखी जाए तो उसको भी 71 साल बीत चुके हैं। पूरे 71 साल से कश्मीरी जदोजहद आज़ादी के नतीजे के तौर पर अक़वाम आलम को देख रहे हैं कि जो कानून, जो मसवदा पेरिस में इंसानी हकूक़ के लिए पास हुआ था, उसके ऊपर उस तरीके से अमल नहीं किया गया जिस तरीके से उसके ऊपर अमल होना चाहिए था और उसके वो नताइज बरामद नहीं हुए जो नताइज उसके बरामद होने चाहिए थे, जिसकी तवक्को 1.25 करोड़ कश्मीरियों को थी। आज मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कश्मीरी आज फिर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ ही देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ने जिस तरीके से
लाखों लोगों को बिला वजह कत्ल किया, ज़िबा किया, उनकी आज़ादी को सलब किया, उनके मुल्क को तोड़ा, एग्रीमेंट को तोड़ा, कानून में तब्दीली की, कश्मीर को तोड़ के अपने साथ मिलाया और उसने ये कोशिश की और वो कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान का हिंदू जो है, हिंदुइज़्म जो है उसको फैलाया जाए और उसके ज़रिए वो मुसलमानों को दबाए, अक़लियतों को दबाए। और आज हमारा मुतालबा ये है कि हम किसी मज़हब की बुनियाद के ऊपर नहीं, किसी रंग व नस्ल की बुनियाद के ऊपर नहीं, किसी ज़बान की बुनियाद के ऊपर कश्मीर नहीं मांग रहे, बल्कि कश्मीरी जो हैं वो इंसानियत की बुनियाद के ऊपर अपनी आज़ादी मांग रहे हैं। और दुनिया को ये पता होना चाहिए कि आज़ादी हर पैदा होने वाले का बुनियादी हक है। दुनिया की कोई ताकत, कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो किसी को ज़बरदस्ती ग़ुलाम रखे। आज हम अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं कि जिस संजीदगी के साथ उन्होंने 1948 में 10 दिसंबर को ये मसवदा पास किया कि उन्होंने कि तमाम ममालिक के अंदर इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, आज हम ये मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।